Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the lecture number 11 of the environmental biology, and the topic of our discussion is the food chain and the food webs. फूड चेन क्या होती है और फूड वेब्स क्या होती हैं, इनको हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अगर हमें ऑर्गेनिजम्स की सीक्वेंसेस का पता चले। इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा जो इनर्जी सोर्स है जिससे एनर्जी हासिल की जाती है वो प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स बेसिकली आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स in the food chain, in the sequence of the organisms. Plants कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मौजूदगी और सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं और उसके नतीजे में जो ग्लूकोज बनाते हैं, दैट विल बी द फूड फॉर द प्लांट इटसेल्फ एंड दैट विल बी द फूड फॉर द प्राइमरी कंज्यूमर फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है ऑर्गेनिजम्स खुराक हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट इज द ग्रास एंड ग्रास इज ईटन बाय द ग्रासहोपर। इन दिस केस ग्रास इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड द grasshopper is the primary consumer, and afterward the grasshopper is eaten by its predator, and this predator which eats to the grasshopper, this is known as the secondary consumers, and afterwards the predator of the grasshopper is eaten by another bigger organism, and this is the basically chain series of the organisms which are involved into the energy flow. Basically it is the food webs. Food web simple words में is the linear sequence of the organism through which the energy moves. क्या कहा कि food chain is the linear sequence of organisms through which energy moves. And what type of the energy in this case? The energy which is present into the plant, and this plant provide the energy to the primary consumer, then secondary, then tertiary, and so on. The top of the consumer of the food web, it is known as the apex consumer. Apex consumer. तो फूड वेब एक लीनियर सीक्वेंस है जिसके ज़रिए से हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है। देयर विल बी द टू टाइप्स ऑफ द फूड चेन्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड दीज टू टाइप्स ऑफ द फूड चेन बेसिकली द फर्स्ट वन इज द ग्रेजिंग फूड चेन, and the second one is the detritus food chain. Detritus food chain. So what is the method behind these two terms? Grazing food chain. It is the chain which starts from the grazer. A grazer mean कोई भी प्लांट हो, क्या हो, लिविंग प्लांट हो, उस प्लांट पर कोई ग्रेस करे, कोई उसको खाए, घास का टिड्डा चाहे हो, चाहे वो कोई मैमल्स, भेड़, बकरी, कोई भी चीज़ हो, वो उस कंज्यूमर, उस प्रोड्यूसर को ईट करे, दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। सो ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट विद द ग्रेजर। ग्रेजर क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लांट मौजूद होता है और प्लांट यहाँ पर फ्रेश फॉर्म में मौजूद होता है, जैसा कि अमूमी तौर पर देखा ही है कि सब्ज़ा खाते हैं एनिमल्स, और ये एंड होती है जाके एपेक्स कंज्यूमर। ठीक
और ये जाके इसका एंड पॉइंट जो है वो है एपेक्स कंज्यूमर। Apex consumer basically it is the end point of the food chain. End consumer of the food chain, at that point the apex consumer will be decomposed by the bacteria. जब ये मर जाएगा, इसका प्रीडेटर कोई नहीं, तो इसका मतलब इसका लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन के बाद when die they will be decomposed by the microorganisms and the nutrients which are present in this case will move to the soil and add to the soil structure, and these nutrients basically available for the plant itself, and then its cycles continue. This is the idea behind the food chain. Detritus food chain. Detritus, what is the meaning of the detritus? Detritus basically is the fallen leaves of the plant. The leaves which are sunk down, the leaves which are shrinks, the leaves which are dead after dropping to the after dropping of the tree and fell into the ground. These leaves basically are the detritus. The organisms debris, it is the detritus. कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका डेब्रिस, एनिमल का डेब्रिस और प्लांट का डेड लीफ या फिर प्लांट के अदर डेड पार्ट्स that will be deposited on the surface of earth, and this material is known as the detritus. क्या बताया है आपको कि detritus basically क्या है? Detritus is the dead organic matter. Detritus is the dead organic matter, and this dead organic matter will be composed of the two things. It is the debris of the animals and it will be the dead leaves. Dead plant भी बोलते हैं या फिर प्लांट का कोई भी स्ट्रक्चर जब वो डेड होने के बाद जमीन की सतह पर जम जाएगा और जमीन के न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा बन जाएगा, दैट विल बी द डेट्राइटस। और ये डेट्राइटस जो गला सड़ा मादा है ये कोई भी कंज्यूमर नहीं खा सकता। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे ग्रास होपर है, जैसे कोई, ये वो कंज्यूमर नहीं खा सकते जो प्लांट मटेरियल्स खाते हैं। लाइक अगर भेड़ का बच्चा हो, बकरे का बच्चा हो, ठीक है, और इसके अलावा ग्रास होपर हो, इनको तो लिविंग मैटर चाहिए। ये लिविंग मैटर खाएंगे प्लांट्स का, और इसमें जो शुरुआत ही डेड ऑर्गेनिक मैटर से हो रही है, आइदर फ्रॉम द एनिमल्स आइदर फ्रॉम द प्लांट। इन दिस केस द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स, द detritus food chain basically starts from the microorganisms. The detritus food chain, it starts from the detritus food chain basically start from the microorganisms. And in this case the dominant microorganisms are the bacteria and the fungi. Bacteria and fungi basically these are the starting material for the detritus food chain. After that this material detritus जो है जब decompose कर देंगे इनको microorganism, it will be consumed by the secondary consumer, tertiary consumers, and these basically end up with the carnivore या फिर like grazing food chain, it will also end up in the apex consumer. आप ये सोच रहे होंगे कि ये फूड चेन तो डायरेक्टली से जैन भाई बता रहे हैं कि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट बता रहे हैं और सेंटर में तो कोई भी शय हमें नज़र नहीं आ रही, तो हमें किस तरह पता चलेगा फूड चेन के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं। तो आइए फिर हम पढ़ते हैं
कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स बेसिकली क्या होते हैं। एक सेकेंड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ साथ इसके हम फूड चेन की डिटेल को डिस्कस कर लेंगे। फूड वेब हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो फूड चेन में बेसिकली ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स मौजूद होते हैं फूड चेन में। ट्रॉफिक लेवल्स मौजूद होते हैं और ये ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, ये हम फूड चेन को डिस्कस करते हैं और साथ ही इनका मुताला भी करते हैं। तो सबसे पहली जो ग्रेजिंग फूड चेन थी, दो तरह की फूड चेन थी ना, मैंने आपको बताया। एक ग्रेजिंग फूड चेन थी और एक थी डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन, ये दोनों चेन्स में डिफरेंस हमने पढ़ा कि दिस चेन विल बी स्टार्टेड बाय द ग्रेजिंग एंड एंड टू द एपेक्स कंज्यूमर एंड दिस food chain starting from the basically microorganisms and end with the consumer। तो आइए फिर पढ़ते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन में जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है प्लांट। That will be the plant, and in this case plant is eaten by another organisms. Plant is eaten by, for example, there will be another organism. This is the plant and this is the plant eating animal, grasshopper। ये क्या है? ग्रास होपर। ग्रास होपर किसको बोलते हैं? घास के टिड्डे को। तो ये जो प्लांट मैंने लिखा है, ये प्लांट बेसिकली है प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर विच फिक्स द लाइट एंड प्रोड्यूस एनर्जी और इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी मौजूद होती है इस लेवल पर, वो मैं आगे डिस्कस कर चुका हूं। तो इसके बाद ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसने प्लांट को खाया है, ये है यहां पर कंज्यूमर। कंज्यूम किया है और कंज्यूम किया है और पहला ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दैट विल बी द प्राइमरी consumer। and primary consumer having less energy than that of the primary producer, and at further this primary producer is further eaten by a secondary consumer। A secondary consumer, for example, let's take in this case the grasshopper is eaten by the fish, and this fish is the slimy fish। ठीक है, slimy fish, this fish is the slimy fish और इसका पूरा नाम है स्कॉर्पियन। slimy fish which is the scorpion slimy fish, and this fish eat to the primary consumer, that will be because it is the secondary consumer. This is not the case that is end up to the secondary consumer. This process is going on to the tertiary, quaternary and at least to the apex consumer। तो ये जो फिश है, ये फिश ईट कर ली जाती है बाय द टर्शरी कंज्यूमर।
by the tertiary consumer. In this case, this fish is eaten by the Chinook salmon. सैल्मन एक फिश है, तो ये फिश जो है ये क्या है, ईट करती है इसको. तो टर्चरी तक बात खत्म नहीं होती. मोस्ट ऑफ द फूड चेन्स विल बी एंड अप टू द टर्चरी, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल केस. देयर विल बी द क्वाटनरी. There will be the quaternary. Quaternary consumer. And this quaternary consumer, for example, any predator, and in this case, the food chain end up to the apex consumer. Apex consumer. In this case, we let's suppose that salmon या Chinook salmon is eaten by the aquatic bird. Aquatic bird. और ये aquatic bird को खा लिया हॉक ने, ठीक है, या ईगल ने खा लिया, जो कि क्या है, हमारे बिगेस्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर है. इनको कोई नहीं मार सकता स्वाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के. इनकी जब डेथ वाक़ई होती है तो इनसे मटेरियल निकलता है, एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी फिर वापस ज़मीन पर आकर तो ये मामलात शुरू होते हैं. तो सबसे पहले देखें कि फूड चेन इज स्टार्टेड फ्रॉम द प्लांट. प्लांट प्रोड्यूस एनर्जी, दैट इज वाई इट विल बी द प्रोड्यूसर, एंड प्लांट इज द ओनली प्रोवाइडर ऑफ द एनर्जी, सो इट विल बी द प्राइमरी प्रोड्यूसर. प्राइमरी प्रोड्यूसर. एंड इन दिस केस, अगर मैं आपको इनकी हायरार्कीज बताऊं एनर्जी की, अगर मैं बात करूं एनर्जी फ्लो की, तो सबसे जो ज़्यादा एनर्जी है, सबसे जो ज़्यादा एनर्जी है वो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जितनी एनर्जी बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान, वो होती है ग्रॉस एनर्जी. अब ग्रॉस एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स. अब प्लांट्स की कुछ अपनी भी ज़रूरियात हैं. प्लांट्स को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद जो एनर्जी बाकी बच जाती है फॉर द प्राइमरी कंज्यूमर, उस एनर्जी को बोलते हैं नेट एनर्जी. नेट एनर्जी बेसिकली इज द अवेलेबल एनर्जी फॉर द प्राइमरी कंज्यूमर. तो प्राइमरी कंज्यूमर में एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के मुकाबले में कम होती है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा है. चलेगा, इस साइन से आपको दिखा देता हूँ. मैं एरो खींचूंगा, उन एरोस को मैं छोटा करता चले जाऊँगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एनर्जी इतनी है और यहाँ पर एनर्जी थोड़ी रह गई, और यहाँ पर एनर्जी उससे कम रह गई, यहाँ पर एनर्जी उससे कम रह गई, यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल थोड़ी थी, और यहाँ पर आके डेथ वाक़ई होती है. और डेथ होने के बाद there will be the no chance of the flowing of the energy. But in this case, when an organisms die, it have nutrients, and these nutrients moves from upper to lower surface of the earth, and these nutrients mix with the earth. अब अर्थ के साथ, सॉइल के साथ न्यूट्रिएंट्स जब मिक्स होंगे तो वो किसके काम आएंगे? वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स के काम आएंगे. तो यही वजह है कि जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं कि एनर्जी ना तो चेंज होती है, ना तो एनर्जी पैदा होती है, ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि ये एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है. दैट विल बी द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. खैर, हमारी बात थी फूड चेन. अब हम बात करने जा रहे हैं डेट्राइटस फूड चेन की. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमने पढ़ा, ये डेट्राइटस फूड चेन भी इसी तरह से है. डेट्राइटस फूड चेन बेसिकली जो सिंपल फूड चेन है, ये भी प्राइमरी, ये स्टार्ट होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्टार्ट होती है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताया था
कि बैक्टीरिया हो सकता है या फिर फंजाई हो सकता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर क्या होंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं। किसके प्रोड्यूसर्स हैं? डेट्राइटिवोर फूड के लिए प्रोड्यूसर। इन्होंने उस डेट्राइटिस मटेरियल को डीकम्पोज किया। ठीक है, उसको डीकम्पोज किया, डीकम्पोज करने के बाद उसको अवेलेबल किया किसके लिए? यहाँ पर फॉर एग्जांपल मौजूद था अर्थवर्म, अर्थवर्म मौजूद था। ये अर्थवर्म यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर का रोल प्ले करेगा। दैट विल बी द प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये जब प्राइमरी कंज्यूमर का रोल प्ले करेगा तो अर्थवर्म क्या? कोई नहीं खाएगा। अर्थवर्म इज ईटन बाय द बर्ड डायरेक्टली। बर्ड है, ब्लैक बर्ड उसको बोलते हैं। ब्लैक बर्ड डोमिनेंटली ईटन टू द अर्थवर्म्स। तो ये डेट्राइटिस फूड चेन शॉर्ट फूड चेन होती है देन दैट ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एंड हो गई। ब्लैक बर्ड इज ईटन बाय द हॉक। अगर ब्लैक बर्ड बच गया तो उसको हॉक ने खा लिया। यानी कि यहाँ पर आगे दो पॉइंट्स हैं कि ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, इसका आगे टर्शियरी कंज्यूमर होगा हॉक और इसका एपेक्स आ जाएगा और इसके बाद ये फूड चेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये है बेसिकली फूड चेन्स। फूड चेन्स क्या होती हैं? पेपर में क्वेश्चन आता है सिंपल कि राइट अ नोट ऑन द फूड चेन एंड फूड वेब, बस विद एन एग्जांपल। तो फूड चेन की डेफिनेशन लिखो, इन दोनों में से कोई एक फूड चेन लिख दो। अगर नाम दे के पूछा गया हो कि ग्रेजिंग लिखनी है फिर ये लिखो। अगर नाम दे के पूछा गया हो कि डेट्राइटिस लिखनी है फिर ये लिखो। अदरवाइज हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन दोनों को लिखने की। हम 7 नंबर का क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिफाइन लिख के एक फूड चेन लिखेंगे और फिर उसके बाद डिफाइन लिख के एक फूड वेब लिखेंगे। दैट इज़ ऑल। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फूड वेब। फूड वेब जो है ये लाइकली फूड चेन की तरह ही होती है, लेकिन जिस तरह मैट्रिक्स से एफएससी में आने तक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, इसी तरह ही फूड चेन से जब हम फूड वेब की तरफ मूव करते हैं तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती हैं। होती फूड चेन है, लेकिन जब फूड चेन कॉम्प्लेक्स होती हैं तो इनको नाम दिया जाता है फूड वेब्स का। फूड वेब्स का नाम दिया जाता है व्हेन फूड चेन कॉम्प्लेक्स फूड चेन या फिर मोर देन वन फूड चेन interconnected with one another this is the food webs. फूड वेब बेसिकली ये हमारे काम को आसान करती है, लाइक अ समरी। जिस तरह एक ऑर्गेनिजम्स को दूसरा खाता, दूसरे को तीसरा ऑर्गेनिजम्स फीड करता है, तीसरे को फोर्थ एंड सो ऑन, एपेक्स कंज्यूमर पे जाके बात फिनिश होती है। तो फूड वेब में बिल्कुल इसी तरह से निज़ाम चलता है, लेकिन एक ऑर्गेनिजम्स को खाने वाला दूसरा ऑर्गेनिज्म एक नहीं होता, बल्कि एक प्रे के
2 और मोर प्रीडेटर होते हैं वो एक प्रे को फीड करते हैं, यानी कि उसमें फूड चेन में डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। तो फूड वेब जो है, एक लाइन में अगर मैं इसको डिफाइन करूं, फूड वेब बेसिकली इज द combination of the food chain. Food web are the combination of food chains, and food webs are the summary of the feeding interactions within a community. लफ्जों में गौर कीजिए कि फूड चेन, food web is a summary of feeding interactions within a community. Food chain is the combination of the feeding interactions within the community. It means it simplifies the mechanism, but it explains the food chain. In order to better understand the food web concept, now we move to the example of the food web. So what is the example of the food web? क्या हो सकती है? Example of food web basically is also start from the primary producers. All the food chains and the food webs are starting from the two things. अगर ग्रेजिंग है तो प्लांट के साथ, अगर डेट्राइटस है तो फिटेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ। तो ये फूड वेब मैंने आपको बताया है बेसिकली फूड चेन ही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी एग्जांपल भी हम यूँ लेंगे कि इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो प्राइमरी प्रोड्यूसर ही होगा, और जो एंड पॉइंट होगा इसमें भी एपेक्स कंज्यूमर ही मौजूद होगा। बड़ी अजीब सी बात है, चलो आए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी अ प्लांट, there will be a plant, and plant is the primary producer. Is the primary producer. Plant is eaten by the primary consumer, as we see in the previous section. Now we repeat this. This is the grasshopper. चलिए यहाँ पर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हम यूं कर लेते हैं कि ये प्लांट जो है ये एलजी है, ठीक है। ये क्या है? एलजी है, इक्वेटिक प्लांट है। तो इसको ईट किया मसल ने, ठीक है। जरा डिफरेंट करके समझाने के लिए ये नाम रख रहा हूं। तो मसल यहाँ पे क्या है? मसल यहाँ पर, शाबाश, प्राइमरी कंज्यूमर। ये मसल जो एक्ट एज द प्राइमरी कंज्यूमर है। एक क्वेश्चन बताएं कि एक क्वेश्चन का आंसर बताएं कि यहाँ पर एनर्जी इसमें ज़्यादा है कि एनर्जी इस लेवल पे ज़्यादा? शाबाश, एनर्जी इस लेवल पर ही ज़्यादा है। बेसिकली हम यहाँ पर एनर्जी रिलेशनशिप नहीं पढ़ रहे, हम फूड वेब्स पढ़ रहे हैं। तो आपको साथ साथ सारी बातें बताते चले जाएं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है। और एक और बात जो फूड चेन में मैंने आपको बताना चाहिए थी वो ये कि फूड चेन हो उसमें जो ईटिंग लेवल्स हैं इनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। क्या बोलते हैं इनको? इधर मैं लिखता हूँ, दीज आर द ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रैफिक में is the feeding level, mean level, feeding level. It means there will be a one feeding level, second feeding level,
third, fourth and so on that ends up with the apex consumer. तो फिर बगैर टाइम ज़ाय किए ये मसल आपका प्राइमरी कंज्यूमर है जी। अब मसल्स को कौन खा सकता है? मसल्स इज आल्सो ईटन बाय द अदर इनवर्टिब्रेट्स, अदर एनिमल्स, ठीक। मसल फॉर एग्जाम्पल इज ईटन बाय द sea star. Mussel is eaten by the sea star, and sea star is the secondary consumer in this case. Secondary consumer in this case. Sea star को कोई नहीं खाता. Sea star is also eaten by the bigger fish. Sea star is also eaten by the bigger fish. Bigger fish. बाही तवज्जो नहीं देनी आपने इधर. Sea star is eaten by the bigger fish. Bigger fish is the tertiary consumer. Tertiary consumer, and this bigger fish may be eaten by more than one predator. There will be the, ये P sign है predator का, there will be the predator number 1, there will be the predator number 2, there will be the predator number 3. It means there will be the diversity which is not seen in the food chain. अब ये फूड चेन जिसमें डाइवर्सिटी हो गई है, दिस फूड चेन विल बी कन्वर्ट इनटू द फूड वेब. यहाँ पर ये फूड वेब की शक्ल इख्तियार करती है. तो ये यहाँ पर जो प्रीडेटर नंबर 1 था, मे बी ईटन बाय द सी स्टार, दिस प्रीडेटर फिश मे बी ईटन बाय द अनदर प्रीडेटर, this predator number 1 is eaten by the mussel and so on. There will be the complexity. अगर मैं आपको स्केच बना के दिखाना चाहूँ इससे थोड़ा सा डिफरेंट, तो ये समझ लें कि ये है फूड चेन. फूड चेन अगर हम देखें तो ये है एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल. और अगर मैं फूड वेब की बात करूँ तो ये क्या है? पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, कॉम्प्लेक्सिटी. आप इसको मे भी ये खाए, ये लेवल चलते जा रहे, इसको मे भी ये ऑर्गेनिज्म खाए, इसको मे भी ये ऑर्गेनिज्म खाए, ये मे भी इस ऑर्गेनिज्म्स को खाए. There will be the complexity in which the one organism is eaten by the more than one organism. One predator have many prey or the one prey have many predator. लफ्ज़ पे गौर करें. इन केस ऑफ द फूड वेब दो लफ्ज़ हैं कि वन प्रे इज इक्वल टू द मैनी प्रीडेटर, या फिर वन प्रीडेटर हैव मैनी प्रे. और इसकी एग्जाम्पल तो आसान सी है, ठीक है. जैसे एक प्रे हो, एक शिकारी और शिकार हो, उसको बहुत सारे प्रीडेटर्स खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ज़ेब्रा को टाइगर भी हंट करेगा, लायन भी हंट करेगा, और इसको और वाइल्ड एनिमल्स भी हंट करेंगे. यानी कि बेचारा प्रे शिकार तो एक है, प्रीडेटर बहुत ज़्यादा है, इसको ह्यूमन भी हंट करेंगे बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली. तो यहाँ पर केस उसके उल्टा है कि एक प्रीडेटर होगा, मैनी प्रे होंगे. यानी कि एक प्रीडेटर है, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट ईटिंग बर्ड है, तो वो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड एक प्रीडेटर है और वो मल्टीपल इंसेक्ट्स को, मल्टीपल प्रे को फीड करेगा. दैट विल बी द मैनी प्रे. और ये जो इंटरेक्शंस हैं इनके दरमियान, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे. फूड वेब इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगी. तो ये था बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 11 ऑफ द एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इन विच वी
try to understand about the food web and the food chain. Inshallah, we will meet in the next video with the next and the new lecture, and we are going to end up this environmental biology about 2 or 3 lectures. Inshallah, Azza wa Jal. Assalamu alaikum.